और उसके बाद MCQ से थोड़ा और ज़्यादा बेसिक्स क्लियर होंगे. तो वी विल डू लॉट ऑफ MCQs इन टुडेज एज वेल एज इन टुमारोज सेशन. So guys, all those students who are taking live, this is going to be a very important session because as you know ki we are going to discuss MCQs of entire microeconomics in today's class. So we have offline students and we have lot of online students who are taking today's session. There are some of the video students as well who are taking today's session, and you must have received the YouTube link for your session. So all the students with YouTube link, guys, pay attention. You are supposed to write your answer on in WhatsApp, your answer on 9910427442 on Institute WhatsApp. Please make sure that if you are taking class live via YouTube, you are giving your answer on this WhatsApp number 9910427442. Rest all the students who are taking class live via streaming, आपके लिए बिल्कुल वैसे ही चलेगा, आपको चैट पे ही रिप्लाई करना है. This is just and just for those students who are basically video students and taking live via YouTube. So YouTube वालों को इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आंसर, ऑनलाइन वाले चैट से आंसर करेंगे, ठीक है. So let's just wait. I can see that some of the students are not yet online. I'm just waiting for 1 or 2 minutes so that everyone can join and then we will start. Done with micro पूरा? So actually there are multiple responses in today's session because we have live students as well plus YouTube students also. So guys, please wait for me to see all the responses and then we will discuss each and every answer. Okay, so without wasting any time, let's start with our discussion. टेक योर टाइम एंड देन गिव आंसर. आप जो भी आंसर दोगे, आप ऑप्शन ए दे रहे हो, ऑप्शन बी दे रहे हो, जो भी ऑप्शन दोगे, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर दैट. अब ये डाउट रहता है सबको कि क्या हमें एमसीक्यूज में एग्जाम में भी डिस्क्रिप्शन देनी है. तो क्या देनी है एमसीक्यू में एग्जाम में डिस्क्रिप्शन? नहीं देनी. दिस इज जस्ट एंड जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. और ये सेशन हम लोग सिर्फ आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए ले रहे हैं. सो दैट इज व्हाई इफ यू आर गिविंग आंसर you have to give me the reason for the same. So let's start. First question of the day. Which of the following item does not affect the cost of production for mobile phones? Which of the following items does not affect the cost of production for mobile phones? ऐसे नहीं, wait. पहले पूरा पढ़ने दो ऑप्शन सबको. फिर cost of rare earth metals used to make microchip for the phones, cost of R&D undertaken by the company to develop new features, geopolitical conflicts, competition between firms. No, आपकी मर्जी है, मतलब this is just from your past papers only. If you want, you can write. Otherwise, unnecessary बहुत टाइम वेस्ट होगा ना. आप पता क्या करो, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखो और आंसर लिख लेना.
ताकि अगर सिमिलर सा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि हमने क्लास में डिस्कस किया होगा। अदरवाइज जो भी मैं भी पेपर डिस्कस करूंगी, व्हाट आई विल डू इज आफ्टर द क्लास आई विल जस्ट गिव यू द लिस्ट ऑफ द पेपर्स फ्रॉम व्हिच वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चंस, तो आप बाद में देख लेना, ठीक है। अभी बस आप आंसर पे कंसंट्रेट करो। एवरीवन, व्हाट्स द करेक्ट आंसर फॉर द सेम? Okay, one answer received by Divyanshu says geopolitical firms. As per Divyanshu, geopolitical firms से हमारा cost of production impact नहीं होता. Others, in case you are not able to use the chat section, Ananya, just feel free to put your answer on Institute's WhatsApp. There is no need for it to get resolved. As of now, just put it on WhatsApp. हाँ जी, C. Okay, let me see. Kanishka says geopolitical conflicts because option A and B affect the production cost while option D affects pricing. What do you feel? You say C? Aap C. Okay, let's see now. Which of the following does not affect the cost of production? The cost of rare earth metals used to make microchips for the phones. क्या ये affect करते हैं? करते हैं, क्योंकि इससे आपका क्या impact होगा? आपकी input cost impact होगी, ठीक है। Cost of R&D undertaken to develop new business, इससे मेरी supply change होगी। क्या geopolitical conflicts का supply पे कोई impact नहीं आएगा? एक कंट्री में बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं, आपके हिसाब से कोई impact नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, आ सकता है। कॉस्ट की वजह से लड़ाइयाँ चल रही है, गवर्नमेंट आपको कोई टैक्स एडवांटेजेस देता था, वो टैक्स एडवांटेजेस उसने देने बंद कर दिए। डी होगा नहीं, डी का रीजन बताओ। डी इज द आंसर। कंपटीशन बिटवीन फर्म्स कैसे कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है? कंपटीशन आपके प्राइस को इम्पैक्ट करता है, नॉट योर कॉस्ट। तो बैडली आंसर्ड बाय एवरीवन। Guys, if you are giving answer on Institute's WhatsApp, just put your name also for the first time if you are answering. Someone has answered B. B is wrong. Totally wrong. R&D definitely impacts cost of production. Nandini says D. देखो, competition between firms will affect price but not affect the cost. Ananya says D. Manav says D. Vishali says C. So all those who have answered D plus 1.5. अपने आप को मार्किंग भी करना, नो नेगेटिव मार्किंग, ओनली प्लस 1.5 और 0. सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? Uncertainty is a measure of variability of an outcome. Risk is when the outcome of an action may or may not occur, but the probability of occurring is known. Uncertainty is when an outcome may or may not occur and its probability of occurring is unknown. Short seller is exposed to the risk that asset they have short sold will rise in price, leading them to make a loss. You have to select an answer which is wrong, basically the statement which is false. Uncertainty is a measure of variability of an outcome. चलो मैं आपको इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। हाँ बोलो। You say A. Uncertainty is a measure of variability of an outcome. Why? Why is it false? B is true, C is true. Uncertainty is not a measure of variability. Yes, uncertainty is not a measure of variability. What's a measure of variability? Uncertainty is actually variability. अनसर्टेनिटी हमें ये नहीं बताता कि कितनी वेरिएबिलिटी हो रही है, हमें वो वेरिएंस बताता है कितनी वेरिएबिलिटी हो रही है। जब हम आगे आप लोग CM2 में सीखोगे कि वायर कैलकुलेट करते हो, टेल वायर कैलकुलेट करते हो, तब आपको वेरिएंस पता चलता है। अनसर्टेनिटी से आप किसी चीज का वेरिएंस नहीं निकाल सकते।
रिस्क इज व्हेन द आउटकम मे और मे नॉट अकर बट प्रोबेबिलिटी इज नोन। रिस्क का क्या मतलब होता है कि हाँ हमें ये चीज पता है कि होने वाली है लेकिन हमें नहीं पता कि होएगी या नहीं होएगी। जैसे अर्थक्वेक हमें नहीं पता कि होगा या नहीं होगा लेकिन नेचुरल डिजास्टर रिस्क रहेगा। अनसर्टेनिटी में क्या होता है, आपको ये भी नहीं पता और आपको ये भी नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग क्या है। थर्ड वन, शॉर्ट सेलर इज एक्सपोज्ड टू द रिस्क दैट एसेट दे हैव शॉर्ट सोल्ड विल राइज इन प्राइस लीडिंग देम टू मेक अ लॉस। ऑल द थ्री ऑप्शंस सीम टू बी करेक्ट. So one answer received by Manan says A. Perfect. All those who have answered A is the answer. नहीं, basically there are different measures to calculate variability. Nandini says A. Ananya says A. Kanishka says B. So guys, be careful. Just to answer, you are not giving answer B. तो कहीं से भी true false नहीं है. रिस्क में हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि आपको रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है। अनसर्टेनिटी मींस कि मुझे पता ही नहीं है क्या होने वाला है। रिस्क का मतलब क्या है कि आपको ये नहीं पता कि आउटकम क्या होगा लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो और आपको पता होती है। सो प्लस 1.5 मार्क्स टू ऑल दोज हु आंसर्ड ए। चीटिंग मत करना गाइस, बी केयरफुल, आंसर अपने आप को मार्किंग करेक्ट करना। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, अ कंपनी हैज सफर्ड अ सिवियर हिट टू इट्स ब्रांड नेम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू इट्स डिमांड कर्व? दिस वन इज इजी। Why B? ब्रांड नेम में अगर मतलब डिक्रीज हो जाएगा उसका ब्रांड नेम डिमांड कम जाएगा, दैट इज बिल्डअप ऑफ द वेव। ठीक है, मोर इलास्टिक क्योंकि पीपल विल चेंज देयर डिमांड। यस परफेक्ट, आंसर इज बी एवरीवन। जैसे ही आपका बेसिकली क्या कहते हैं सिवियर हिट टू योर ब्रांड नेम, दैट मीन्स आपके ब्रांड पे कुछ भी सवाल अगर उठेगा तो सबसे पहले आपका डिमांड कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, राइट तो होना ही नहीं है। तो अगर राइट नहीं होना दैट मीन्स ऑप्शन ए भी मेरा आंसर नहीं है और ऑप्शन डी भी मेरा आंसर नहीं है। तो आई एम लेफ्ट ओनली विद ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सो जैसे मेरा डिमांड कर्व लेफ्ट में मूव होगा, मेरे पास मेरे कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे और सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाएंगे कंज्यूम करने के लिए, तो दिस विल मेक इट मोर इलास्टिक। So plus 1.5 for everyone who answered B. So Ananya says B, Vishali says B. Guys, give reasons. जल्दी जल्दी के चक्कर में reason को sacrifice मत करो. Do give your reason. Next, fourth question. Which of the following is income effect on the change in price of a particular good? Read the question carefully, take 2 minutes time, then answer. Think and then answer. Okay, let's discuss which of the following, all those who are not able to answer this question, guys make sure that you are redoing everything because ये एक conceptual question है, ये application question नहीं है। अगर आपके concept strong है तो आपका answer आना चाहिए था इस question का। Which of the following is income effect on the change in price of a particular good? मुझे पहले ये बताओ, जब एक price change होता है
हमने ये चीज डिस्कस करी थी जब हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, जब भी प्राइस किसी प्रोडक्ट का चेंज होता है दो इफेक्ट्स आते हैं, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि बेसिकली आपका परचेजिंग पावर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अगर गुड का प्राइस बढ़ेगा, मेरे पास पहले 100 रुपीज थे, मैं उससे लेट्स सपोज गुड एक्स की 10 यूनिट्स कंज्यूम कर पाती थी, तो कितना मतलब क्या हुआ, बेसिकली कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मैं 100 से 10 यूनिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू से प्राइस ऑफ 10, तो 10 इंटू 10 100। अब क्या हुआ, प्राइस उस गुड का बढ़ गया, तो 10 से प्राइस चेंज हो गया 20 पे, अब मैं उस गुड की कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर सकती हूँ, 5। So is this substitution effect? No, this is income effect. Basically, if there is a rise in price of a particular good and the purchasing power of the customer has changed, that is income effect. Substitution effect में क्या होता है? People start shifting to other goods. अब ये आपको रियलाइज करना, आपने आंसर क्या दिया? सी दिया था ना, अब बी बोल रहे हो। ये दिक्कत है मुझे एमसीक्यूज में, और ये आपको ये अभी रियल चेक है, यू नीड टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स। Kanishka says A and C are substitution effect. Answer is B. Perfect, Kanishka. Vishali says B. Nandini says B. Okay. Manan says B. Good one. Every online student answered B. All those who are not answering, they feel कि हमें सब कुछ आता है, हमें आंसर करने की जरूरत नहीं है। So guys, if you are taking it live, do try to participate. MCQ से better और किस चीज में आप participate कर पाओगे? When the prices of tomatoes increase, people started consuming more onions. साफ दिख रहा है? Substitution effect. When price of wooden furniture increase, people start buying more steel furniture. Substitution effect. Both A and C, ना A हो सकता है ना C हो सकता है, तो ऑप्शन D तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन B क्या कह रहा है? When the price of laptops increase, the demand for the laptops fall. Clear? So plus 1.5 to everyone who answered correctly. Question 5 is just your definition. So this is more relevant basically for II students. IFOE में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। बाउंडेड रैशनैलिटी बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, जब आपके पास इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए टाइम नहीं होता, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं होती, आपके पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझने की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो बाउंडेड रैशनैलिटी इज कॉज्ड बेसिकली बाय ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका टेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज दिस इज मोर रेलिवेंट फॉर आई स्टूडेंट्स। Sixth question. Which of the following is or are true about short-run marginal cost? Marginal cost is the addition to total cost as a result of producing one more unit. Short-run MC is equal to increase in short-run variable cost. Shape of short-run MC curve is U-shaped. Option are both 1 and 2, only 1, all 1, 2 and 3, only 3. Is MC curve U-shaped? ये होता है मेरा AC। हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली MC कैसे बनाते हैं हम? ऐसे कि बेसिकली MC cuts AC at its minimum point. तो is MC curve U-shaped? यू शेप का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? देखो, फर्स्ट इट इज फॉलिंग, इट देन बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग। बट एमसी ऐसा नहीं है, एमसी इट्स लाइक दिस। सो एमसी इज नॉट यू शेप्ड, सो आंसर बिकम्स both 1 and 2. MC is addition to total cost as a result of producing one more unit of output. शॉर्ट रन एमसी अगर हमें निकालना होता है और फिक्स्ड हमें कॉस्ट गिवन है, तो हमें पता है फिक्स कॉस्ट आपकी एमसी को इम्पैक्ट नहीं करती, सो इट्स जस्ट इंक्रीज इन योर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। सो बोथ 1 and 2, आंसर इज ए।
Kanishka, all 1 and 2 and 3. Bad. Ananya says A. Others don't know the answer, that's why only 2 responses received. Next one. Which of the following are variable cost for a firm? Rent for office space. रेंट वेरिएबल कॉस्ट होता है? नहीं होता. आपको रेंट तब भी देना है अगर आप 0 गुड्स बना रहे हो, अगर आप 100 गुड्स बना रहे हो तो भी आपको रेंट उतना ही पे करना है. सो इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन योर आउटपुट. मीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी, यस इट्स डिपेंडेंट. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती रहेगी. सैलरीज ऑफ अनस्किल्ड लेबर, अगेन इट्स डिपेंडेंट. सो आंसर इज बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी. So 7th का आंसर is option D, everyone. So Ananya says D, Khushbu says D, Manav says D, Kanishka says D, Vishali A. Vishali A is not variable cost. Please read the question carefully. A, rent is your fixed cost, not your variable cost. Next, question 8. Which of the following is main reason for diseconomies of scale? Economies of scope से क्या होता है? Economies of scale. Economies of scope होता क्या है? Yes, कि when we are able to produce multiple products. मैनेजीरियल फैक्टर से हमने यही तो पढ़ा है कि आपस में लड़ाइयाँ होती है तो डिसइकोनॉमीज. इजी, ऑप्शन बी. तो अब देखो, अगर मैं अभी हम आगे मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि आपके अगर 25-26 मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आपका अगर एमसीक्यू स्ट्रांग हो जाएगा और थोड़ा बहुत गलती आप लॉन्ग क्वेश्चंस में कर लोगे तो वहां पर आपका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा. बिकॉज अल्टीमेटली यू शुड एम कि हाँ मेरे को 65-70 तक 65 तक एक बार लाने हैं. ज्यादा चलो हम वर्स्ट केस मान लिया 66-67 तक चलेगा तो 70 हम लोग वर्स्ट मान के चलते हैं. तो आपको 70 मार्क्स के लिए पास या फेल आपका डिसाइड करेगा. तो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट to get pass in CB2 provided you are thorough with your concepts. So दो ही चीजें हमें CB2 में चाहिए. एक आपके नोट्स आपके रेडी होने चाहिए और दूसरा आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए आपको स्टेप्स पता होने चाहिए. बार अगर आप वीडियो से गो थ्रू करते रहोगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो. आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे कौन से पास पेपर्स करने हैं, कौन से पास पेपर्स के लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं. दैट्स इट. अब जैसे हमने पूरा 1 to 10 कंप्लीट कर लिया तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड. नाउ नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम लोग एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. उसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद आवर मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन. नेक्स्ट वन, देयर आर few restaurants and pubs operating in an area. What could be the market structure that appropriately defines them? Read the question carefully, then answer. Few word देखकर ए मत बोलो. few के अलावा भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. क्या रेस्टोरेंट्स और पब्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं? ठीक है. और एक जगह के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल रेस्टोरेंट्स एंड पब्स. तो ओलिगोपॉली है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? व्हाई मोनोपोलिस्टिक? तो भी यहाँ पे तो फ्यू रेस्टोरेंट्स लिखा है. यस. रेस्टोरेंट्स और पब्स का मतलब ये थोड़ा ना कि हम बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं. हम नॉर्मल लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल से भी स्टार्ट तो कर ही सकते हैं. लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, दैट सेपरेट. बट नॉर्मल हम स्टार्ट कर सकते हैं. हम ऐसे कोई प्राइस बोर्ड्स मेंटेन नहीं करते. आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप एक एरिया में जाते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर चीज का हर जगह सेम प्राइस ही रहेगा.
ऐसा तो नहीं है कि एक जगह दाल मखनी आपकी 400 की है, सेम एरिया के अंदर दूसरी जगह दाल मखनी 2400 की तो नहीं रहेगी। डिफरेंट एरियाज में कंपटीशन हो सकता है, लेकिन सेम एरिया में जनरली सेम प्राइसेस ही होते हैं एक चीज के। सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि ऑलमोस्ट सिमिलर से प्राइसेस ही होते हैं इनके। मोनोपोलिस्टिक क्या कहता है? सिमिलर प्राइसेस ही ऑलमोस्ट, बट बिकॉज हमारे पास थोड़ी सी मार्केट पावर है टू इन ऑर्डर टू सेग्रीगेट ऑफ सर्विसेज, दैट्स व्हाई हम थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक आपको सिटिंग वाला दे रहा है, एक आपको अच्छा रूफटॉप एक्सेस दे रहा है, तो उस वजह से आपके डिफरेंसेस आ सकते हैं। अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। ओलिगोपॉली में आपको प्राइस के लिए लड़ना है, यहाँ पे हम लड़ते थोड़े ना है प्राइस के लिए। यस, so answer is B everyone. So Khushbu says B, Kanishka says B, Ananya says A, so Ananya 0 marks for same. Next one, in limit pricing strategy, oligopolist charges a price that is below the minimum AC of a new entrant, its own average MC, short run profit maximizing price, both A and B. लिमिट प्राइसिंग क्या होता है? यस, और कितना कम कर देते हैं? नहीं, कितना, किस पॉइंट से हम नीचे बेचने के लिए भी रेडी हो जाते हैं? अपनी एसी से भी नीचे बेचने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं कि हम बेच देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लॉस खाने के लिए रेडी है, लेकिन कोई और फर्म नहीं आनी चाहिए। तो आपके हिसाब से सिर्फ बी होना चाहिए या ए भी होना चाहिए? ए की तो एवरेज कॉस्ट वैसे भी ज्यादा होगी, तो उसकी एवरेज कॉस्ट से तो आप वैसे भी कम ही बेचोगे। तो ए तो ऑटोमेटिकली एक तरीके से ट्रू ही हो गया ना, उसकी एवरेज कॉस्ट से तो आप वैसे भी कम बेचोगे। और आप तो कह रहे हो मैं तो अपनी एवरेज कॉस्ट से भी कम बेच रही हूँ। आपकी एवरेज कॉस्ट लेट्स सपोज 8 है, जो न्यू एंट्रेंट है उसकी एवरेज कॉस्ट 10 है, आप कह रहे हो मैं 7 पे बेच रही हूँ, तो 7 इज ऑटोमेटिकली लेस देन 8 लेस देन 10। क्लियर? सो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। प्रेडेटरी प्राइसिंग और लिमिट प्राइसिंग में कोई, लिमिट प्राइसिंग में हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपनी एसी से नीचे बेच रहे हैं। प्रेडेटरी प्राइसिंग इज एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, एनी टाइप ऑफ प्राइसिंग दैट यू आर डूइंग जिसमें यू आर जस्ट डेटरिंग न्यू एंट्रेंट्स इनटू द मार्केट, दैट्स इट। Eleventh, cab aggregator strategy of charging different prices फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैब्स। बाइक का प्राइस कुछ और होता है, मिनी का प्राइस कुछ और है, प्राइम का प्राइस कुछ और है, प्राइम प्ले का प्राइस कुछ और है। ये कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है? थर्ड डिग्री। क्यों? इलास्टिसिटीज क्या डिफरेंट है? आर यू सेग्रीगेटिंग इनटू डिफरेंट ग्रुप्स? आप बुक करवाते हो, ठीक है, आप बुक करवाने के टाइम पर आप वहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर रहे हो मिनी का, मिनी नहीं आती है, हम लोग क्या करते हैं बुक एनी एट टाइम्स, अगर हमें इमरजेंसी है तो हमें बुक एनी भी करना पड़ता है। यहाँ पर कैटेगरीज कहाँ सेग्रीगेट हो रही है? सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटीज का इम्पैक्ट हो रही है। हमने क्या बोला था, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? दो टाइप की मार्केट है, एक यंग की मार्केट है, एक एडल्ट की मार्केट है। दोनों टाइप की मार्केट की इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है, इसीलिए आप दोनों का अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर आपको याद हो, देयर आर डिफरेंट कंडीशंस फॉर प्राइस, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन यही है दैट इलास्टिसिटी हैज टू बी डिफरेंट। फर्स्ट डिग्री हो सकता है, फर्स्ट डिग्री हो सकता है, फर्स्ट डिग्री नहीं हो सकता। क्यों? आपको ये मैक्सिमम प्राइस कहाँ लिख रहे हो? अगर आपको एक ऐप पता हो, InDrive जो आजकल चल रही है, उसमें क्या होता है, उसमें आप बता देते हो
कि मैं मैक्स में आपने प्राइस उन्होंने ऑफर किया आपको प्राइस 300, आपने कहा नहीं मेरे को 300 नहीं सेलेक्ट करना, आपने अपना ऑफर लिख दिया कि मैं 310 मेरा मैक्स है मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर वो आपको 310 में सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आप वो कैब लीव कर देते हो। तो वहाँ पर आप उतना प्राइस चार्ज कर रहे हो बेसिकली जितना कंज्यूमर देने के लिए रेडी है। क्या ये सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? क्यों? सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफर आ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? क्वांटिटी के बेसिस पे। और कुछ? फर्स्ट भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड आपको मुझे काउंटर करना है, मैं तो आपको कंफ्यूज कर रही हूँ। नन ऑफ द अबव है तो सही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको ये काउंटर देखना है। अच्छा, कनिष्का सेज थर्ड डिग्री, Vishali says first degree we charge what they are willing to pay. We are not charging what they are willing to pay. First degree तो definitely नहीं है, हमने बस रेंज बता दी कि अच्छा आप मिनी सेलेक्ट करोगे तो 500 है, ये सेलेक्ट करोगे तो ये है, आप चूज करो। क्या है फिर? थर्ड। ऑप्शन ए, we are just assuming that we are segregating into different groups and elasticity is different. That's why it is third degree price discrimination. अगर हम ये assume कर ले कि elasticity सेम है और ये मान लो आपने इसको अगर कोई आपको इस चीज़ को काउंटर कर ले कि elasticity तो सेम ही है, फिर हम क्यों थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चूज कर रहे हैं? अगर हम लोग ग्रुपिंग नहीं कर रहे, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। देखो ग्रुपिंग एक तरीके से है भी और नहीं भी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो आपको बेसिकली ऑप्शन दे दिया है कि आपकी मर्जी है, आप चारों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, तो इट्स अप टू यू, आपको जो सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर लो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम लाइफस्टाइल विजिट करते हैं, वहां हमें ऑप्शन दिया होता है बाय 1 at 40, बाय 2 at 50, बाय 3 at 60, तो इट्स अप टू अस। तो अगर हम इस रूल को सिलेक्ट करें तो आंसर इज सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर हम लोग इलास्टिसिटी वाला पॉइंट देखें तो आंसर इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इस केस में व्हाट आई फील इज वी कैन मेंशन मोर अबाउट इलास्टिसिटी, बट यस इट कैन बी अ केस ऑफ सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एज वेल, बिकॉज अगर मैं इसको उस सेंस में सोचूं कि कस्टमर्स आर विलिंग टू सिलेक्ट वट एवर दे वांट टू सिलेक्ट, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपने बेसिकली डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए उनको, तो थोड़ा सा बायस्ड थर्ड डिग्री की तरफ ज्यादा जा रहा है, इसलिए आंसर इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम मतलब इसमें तो हम ऑप्शन चूज पहले कर रहे हैं ना, उसके बाद थोड़ी ना कर पा रहे, एक बार कैब आ गई फिर थोड़ी ना आप चेंज कर दो। हाँ, कैब बस बुक करने से पहले हम चेंज कर रहे हैं, एक बार आप उस मार्केट में चले गए फिर थोड़ी ना आप चेंज, हम यही कहते हैं ना कि एक मार्केट से आप दूसरी मार्केट में नहीं आ सकते, तो इसमें भी तो वो है। तो अपना ऐसे केस के लिए एक डिस्क्रिप्शन लिख देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एज एन एग्जामिनर हमें ना अलाउ कर देते हैं कि आप मल्टीपल ऑप्शन को मतलब मार्किंग कर दो, तो यू विल गेट क्वेश्चंस जहाँ पे यू विल गेट कंफ्यूज्ड एंड यू विल फील कि व्हाट अदर हैज रिटन इज आल्सो करेक्ट बट आई हैव रिटन इज आल्सो करेक्ट एंड एट टाइम बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। 12th, in which of the 4 stages of product cycle competition is most intense? सबसे ज्यादा इंटेंस कंपटीशन किस स्टेज पर होता है? लॉन्च, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन? मैच्योरिटी, परफेक्ट। सो कंपटीशन इज मोस्ट इंटेंस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। 13th, which of the following is a merit good? पेंशन मेरिट गुड है? अगर लास्ट क्लास याद हो हमने यही डिस्कस किया था कि वाई पेंशन इज अ मेरिट गुड, याद है?
तो पेंशन तो मेरिट गुड है. वायरलेस इंटरनेट एक्सेस इन अ रेस्टोरेंट, इज इट अ मेरिट गुड? नो. पे पर व्यू टीवी ब्रॉडकास्टिंग, नो. प्राइवेट पार्क्स, हाँ, तो merit goods are basically those which have undervalued private benefits. तो yes, so क्या private park, again I am repeating, is it a merit good? Option is A. सो ऐसे क्वेश्चंस में ना अगर आप लोगों को अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, यू नो कि पेंशन इज अ मेरिट गुड, आप ऑप्शन सेलेक्ट करो और बाकी के ऑप्शन आपको देखने की भी नीड नहीं, बिकॉज बाकी के ऑप्शंस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि मुझे मल्टीपल ऑप्शन अलाउ कर रहा है. जब मेरे को एक पेंशन दिख गया, अगर आपने बाकी का सिलेक्ट किया है या नहीं सिलेक्ट किया वो मैटर नहीं करता. अगर आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया और मेरे आंसर के हिसाब से स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस, तो आई कैन गिव यू मार्क्स फॉर चूजिंग फर्स्ट ऑप्शन irrespective of whether second option can also be chosen or not. So pensions is a private good. Okay. Now let me take you, अब देखो मैं आपको एक बस मेरे को एक चीज़ आपको दिखानी है. In this particular exam, see there are 13 questions of microeconomics. Next देखो 14 से लेकर पूरा हमारा 26 तक मैक्रो है, 27 माइक्रो, 28 एक तरीके से फिर से माइक्रो, 29 माइक्रो, 30th माइक्रो, 31 माइक्रो, 32 माइक्रो, 33 माइक्रो, 34, 35, 36, 37, 38, 39 मैक्रो. सो दिस इज द सेग्रीगेशन, मतलब इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है माइक्रो और मैक्रो. तो 13 to 14 जो फर्स्ट क्वेश्चंस होंगे आपके, दैट विल बी फ्रॉम योर माइक्रो इकोनॉमिक सेक्शन. Now let's move to next thing. November 2023. So the first set of questions that we have done were from November 2023. Now move to next set of questions. Which of the following are complementary good? Car insurance and car, tea and coffee, keyboard and LED monitor, all of the above. All of the above हो नहीं सकता क्योंकि tea and coffee are substitutes. Keyboard and monitor, LED monitor क्या complementary है? क्यों? Yes, it can be used differently as well. So car insurance and car are your complementary goods. So plus 1.5 for this question. Next, subsidy of car production will lead to following. सब्सिडी का डायग्राम बनाओ, फिर देखो क्या हो रहा है. अगर प्रोडक्शन पे सब्सिडी मिलती है तो क्या इम्पैक्ट आता है? सप्लाई कब शिफ्ट होगा कि डिमांड कब शिफ्ट होगा प्रोडक्शन की सब्सिडी पे? यस. Answer for second question, guys. Yes. So shifting of supply curve to the right. Third one, calculate करो. QD given है 100 minus 2P. You are supposed to calculate the price elasticity of demand at a price of INR 10. What's the formula to calculate point elasticity? dQ by dP into P by Q. So just calculate it.
-0.25. So answer is C, everyone, -0.25. So Ananya says C. Next one, guys, be quick. Online students, make sure to give your answers and try to be quick. No scope for anything else. Next question, cross price elasticity of demand is 1.20 for good X with respect to good Y. Which of the following is true? X and Y are substitutes. Increase in price of Y will lead to proportionate increase in price of X. X and Y are complementary, none of the above. पहले तो ये याद करो, सब्स्टिट्यूट का पॉजिटिव रिलेशन होता है कि नेगेटिव रिलेशन होता है? का पॉजिटिव है. अगर तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ए तो सी तो हो ही नहीं सकता. अगर सी नहीं हो सकता तो डी मतलब नन ऑफ द अबव अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है ए और बी भी ना हो. अब नेक्स्ट देखो, increase in price of good Y will lead to proportionate increase in price of good X. Is this true? What does 1.20 says? ये जो 1.20 है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब इसकी अगर मैं आपसे डिस्क्रिप्शन पूछूं तो what exactly is the description? So change in price of good X is basically more than change in price of good Y. मतलब अगर good Y का प्राइस 1% से चेंज होगा तो X का प्राइस से क्वांटिटी 1.20 से चेंज होगी. So increase in price of good Y will lead to proportionate increase. This is not true. So X and Y are substitutes. Is this true? Yes, because it's greater than 1 as well. So answer is A. X and Y are likely to be close substitutes. Kanishka says A. Ananya says A. Nandini says A. Okay, plus 1.5 to everyone. Shadow markets are associated with following. Shadow market में क्या होता है? शैडो मार्केट में क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग जहाँ डिमांड होते जाता है क्योंकि प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम सेटल. ओके, ब्लैक मार्केटिंग जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो मतलब प्राइस सीलिंग्स विच कॉज एक्सेस डिमांड. शैडो मार्केट का मतलब भी यही होता है कि हम लोग प्राइस पे ना कैप लगा देते हैं. तो क्या होता है, कुछ कुछ फर्म्स पुराने वाले प्राइस पे ही बेच रहे होते हैं छुप कर, जानकर डेलिबरेटली वो अपना स्टॉक इंक्रीज करा होता है उन्होंने और वो उसी प्राइस पर बेच रहे होते हैं. तो शैडो मार्केट इज प्राइस सीलिंग विच कॉजेस एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस. प्राइस सीलिंग अगर यहाँ पर है, ये हमने मैक्स की लिमिट लगा दी. अगर आप इस प्राइस पर बेसिकली बेच रहे हो तो होगा क्या, आपकी सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. और अगर यहाँ पर है, यहाँ पर तो हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पर देखेंगे या यहाँ पर उसने करवाएगा. अगर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस ये है और उसने कैप लगाई है इसकी, तो आपका एक्सेस सप्लाई है. अगर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस ये है और यहाँ पर कैप लगा दी कि इससे ऊपर तो आप बेच ही नहीं पाओगे, तब आपकी सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. तो ये होता है शैडो मार्केट में कि आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस इज बेसिकली मोर देन द प्राइस सीलिंग. तो हमने सीलिंग लगा दी है कि इससे ऊपर नहीं बेचना. तो कुछ कुछ फर्म्स क्या होंगी, छुप के इस प्राइस पर, आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस पर बेच रहे होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, विच इज नॉट ट्रू अबाउट अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर.
रिस्क एवर्स इन्वेस्टर विल रिजेक्ट अ फेयर गैम्बल, इज दिस ट्रू? ये तो ट्रू है, वो फेयर गैम्बल को एक्सेप्ट नहीं करता. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ डिक्रीजेस एज वेल्थ इंक्रीजेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जैसे जैसे उसकी वेल्थ बढ़ती रहती है उसकी MUW डिक्रीज होता रहता है. इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी ग्रेटर देन द लॉन्गर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ क्लेम्स, ये भी ट्रू है बिकॉज रिस्क एवर्स को रिस्क लेना पसंद नहीं है तो वो अपनी कॉस्ट से भी ज्यादा प्रीमियम पे करने के लिए रेडी रहता है बेसिकली. लेकिन ये नहीं है कि ही और शी विड अवॉइड ऑल द रिस्क, दिस इज नॉट ट्रू. ऐसा नहीं है कि वो रिस्क लेता नहीं है, वो एवर्स टू रिस्क है, मतलब रिस्क तो ले लेता है लेकिन उसको एक डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा. सो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू, अदर्स आर ऑल ट्रू. अगर ये ऑल नहीं होता तो शायद चारों की चारों ट्रू हो जाते. So sixth का आंसर is B. Next one, which of the following factors of production are variable? रॉ मटेरियल वेरिएबल है, इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल है, मैनेजर एम्प्लॉयड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. अगर आपके पास नहीं भी आ रही इनकम तो भी आपने अगर उसको 1 साल के लिए हायर किया तो उसको पैसा देना पड़ेगा. सो ऑप्शन इज A, 1 and 2. Next, in a perfectly competitive market, products are identical. Consumers have perfect knowledge and behave rationally, so always buy the cheapest good. Demand is inelastic, both A and B. डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक तो होती ही नहीं है, इनइलास्टिक हो सकती है लेकिन परफेक्टली, और इनइलास्टिक भी इतनी नहीं होती बिकॉज बहुत सारे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स अवेलेबल होते हैं. सो सी इज नॉट एट ऑल ट्रू बट ए एंड बी आर डेफिनेटली ट्रू. ऑप्शन इज डी. सो प्लस 1.5 फॉर ऑप्शन डी. Kanishka says D, Ananya says D. Okay, 9th. This is interesting. Which of the following is second degree price discrimination? ऑप्शन इज डी. साफ दिख रहा है देखो. होलसेलर ऑफ फ्लावर्स चार्जिंग लोअर रेट्स फ्रॉम अ कंज्यूमर बाइंग इन हायर क्वांटिटीज. ऑप्शन डी. सो 9th का आंसर इज ऑप्शन डी प्लस 1.5. 10th, which of the following is not a social cost of plastic industry? एक प्लास्टिक इंडस्ट्री है, मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री रन कर रही हूँ, मैं किसी भी फॉर्म का प्लास्टिक बना रही हूँ, मैं उस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ. अगर मेरे प्लास्टिक कंज्यूम करने की वजह से किसी को इलनेस हो रही है और वो प्लास्टिक कंज्यूम करने की वजह से उसको कोई बीमारी हो गई तो वो मेरे लिए सोशल कॉस्ट है या नहीं है? है. अच्छा, एनवायरमेंटल हैज़ार्ड कॉज्ड बाय माइक्रोप्लास्टिक्स, ये भी है. तो अगर ये दोनों सोशल कॉस्ट है तो आंसर इज डी. आप प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, आपकी वजह से कंज्यूमर को प्लास्टिक कंज्यूम करने पे कोई इलनेस हो रही है और वो इलनेस की उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है तो वो आपकी इंडस्ट्री के लिए सोशल कॉस्ट नहीं है. तो फर्क क्या पड़ रहा है?
प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक, आप प्लास्टिक हो, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि प्लास्टिक फूड के अंदर है कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में है कि किसी जगह पे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पूरी की पूरी उसने एक प्लास्टिक फर्म की बात नहीं करी कि मान लो एक पर्टिकुलर फर्म जो प्लास्टिक की बकेट बना रही है, वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो सारी प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात कर रहा है। आ कहाँ से प्लास्टिक रहा है? इंडस्ट्री से। तो अगर किसी भी फॉर्म में प्लास्टिक आ रहा है, आप और मैं अगर उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी वजह से हमें कोई इलनेस हो रही है, तो इट इज अ सोशल कॉस्ट। जब तो हमें बोला जाता है से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक। अगर ए भी सोशल कॉस्ट है और बी भी सोशल कॉस्ट है, तो आंसर सी नहीं हो सकता। सी तब होता अगर वो क्वेश्चन होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कॉस्ट। सो नॉट अ सोशल कॉस्ट मीन्स नन ऑफ द अबव। बिल्कुल है। प्लास्टिक फूड के अंदर कैसे हो सकता है? प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक का कोई फॉइल यूज कर रहे हैं तो वो प्लास्टिक इंडस्ट्री का पार्ट है ना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। This was from II May 2023. Okay. Next set of questions. Which of the following would not be classified as a resource in economics? Okay, you say C. मशीनरी रिसोर्स है, लेबर रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, डेफिनेटली मनी इन द बैंक इज नॉट अ रिसोर्स. सो आंसर इज सी. Next one, free market economies are classed as those where, choose the correct one. Online students, everyone, quickly answer. Free market economies are classed as those where individuals and firms make decisions that determine economic outcomes with some government involvement in priority sectors such as healthcare and education. नहीं है true. Individuals and firms make decisions that determine economic outcomes and there is no government involvement in any sector. So answer is D. Free market मतलब कोई government involvement नहीं है. Third one, which of the following does not limit the maximum output an economy is able to produce?
Yes. So level of demand does not impact the maximum output that an economy. Capital availability impact करेगा, labor force impact करेगा, inputs impact करेगा. So plus 1.5 marks for choosing option C. Next, majority of breakfast cereals contain rice as a key ingredient. If price of rice falls, what's the impact on the price and quantity traded of breakfast cereals? Draw the graph and then see. इम्पैक्ट किस पे आएगा, डिमांड पे कि क्वांटिटी पे, ओ सप्लाई पे? सप्लाई पे कैसे आएगा? चेंज इन इनपुट कॉस्ट. यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज चेंजिंग. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है. Oh, sorry, yes. So cost of production is falling, supply is increasing. So increase in supply will lead to drop in price, increase in quantity. Option is B. So everyone, answer is B. प्राइस ऑफ राइस इज फॉलिंग और राइस से ही वो ब्रेकफास्ट बनता है. तो राइस का प्राइस अगर फॉल हो रहा है तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हो रहा है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल होने की वजह से सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सप्लाई मतलब किस पे इम्पैक्ट आएगा, डिमांड पे कि सप्लाई पे? ऑब्वियसली सप्लाई पे. सप्लाई बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन क्वांटिटी. फिफ्थ वन, डू द कैलकुलेशन. QD is 100 minus 0.2 px, QS is 20 plus 0.6 px. You were supposed to calculate Q demand and supply in equilibrium when quantity kitna and price is 100. So you are saying option? Okay. Everyone, quantity 80, price 100. Next question. Following a 10% rise in price of good A, quantity demanded for good B rises by 25%. What does this imply about the relationship between A and B? पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट है तो मतलब ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, बचा सिर्फ सी और डी. अब इनकी पहले क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालो और चेक करो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं या नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 25
divided by 10. Obviously it is greater than 1, so close substitutes. Answer is C. Next, 7th one. Perfectly competitive firm will make supernormal profits in long run. हो सकता है? Will face barriers when entering the industry. Will charge a price equal to MC of the firm. Will face normally face a downward sloping. C. Perfect. हमें पता तो है MR is equal to MC और MR is equal to AR. Yes. Firm with falling long run average cost is experiencing what? Increasing returns to scale, decreasing returns to scale, diminishing returns, constant returns. Average cost fall कर रही है. It is increasing returns to scale. Everyone. कांस्टेंट का मतलब होता है जब एवरेज कॉस्ट आपकी फॉल कर रही होती है. बेसिकली LRAC का जो हमारा डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है? LRAC कर्व कैसा होता है? ये तो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दिस इज कांस्टेंट एंड यहाँ पे वी हैव डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. सो इस पॉइंट पर माई LRAC इज फॉलिंग. In short run, rise in wages will increase firm's average fixed cost, decrease firm's average total cost, decrease firm's average variable cost, increase firm's marginal cost. राइज इन वेजेस थे, एवरेज कॉस्ट मेरी फिक्स कॉस्ट इम्पैक्ट नहीं होगी तो वो तो आएगा नहीं. ठीक है. डिक्रीज तो डेफिनेटली नहीं होगी कॉस्ट, तो एवरेज कैसे डिक्रीज हो सकता है जब टोटल आपका बढ़ेगा? तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता. विल इंक्रीज एमसी कॉस्ट, ट्रू. एमसी क्यों बढ़ेगी? बिकॉज टीवीसी बढ़ेगी. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट वन. A firm operating in an oligopoly differs from firm operating in perfect competition because of this. Choose. Under perfect competition, there are only few firms, whereas in oligopoly there are many firms. Wrong. Under perfect competition, firm experiences downward sloping, but in oligopoly, firm tends to have perfectly elastic. Wrong. Under perfect competition, firms can only make normal profits in long run, whereas in oligopoly, firms can make abnormal profit in long run and short run. Perfect. Answer is C. तो ये आपका IFOA का सितंबर 2023 का पेपर है, आपका लास्ट डाइट का पेपर है. अब देखो ये इस पूरे डाइट में 10 के 10 क्वेश्चंस वर वेरी इजी. सो आराम से आ सकते हैं मार्क्स. कितने आए? लेकिन पूरी माइक्रो कर ली, मार्क्स फिर भी कितने आए? 10 क्वेश्चन ही आए MCQ में. डेढ़ नंबर के हिसाब से कितने नंबर आए? और अगर एक आधा बीच में गलत हो गया तो मान लो 13, 12, 13. ठीक है. अब 13 आपने माइक्रो से कर लिए, ये सारा अब आपका पूरा मैक्रो है इनका. कहाँ तक? वही 26 क्वेश्चन तक. 27 4 मार्क्स का माइक्रो, सो 15 + 4 19. 28 माइक्रो, 19 + 6 25 फिर से माइक्रो. 25 + 6 31 माइक्रो. 31 + 6 37 माइक्रो. 37 + 4 41 माइक्रो. बस 41 के बाद ये
10 नंबर का सीधा डेंटल का ही क्वेश्चन किया था ना हमने लास्ट क्लास में, 41 + 10 51। तो आप 50% ऑफ पेपर के लिए आज प्रिपेयर्ड हो, आपको इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने हैं अपने। तो अगर आपके वहां पर 15 नंबर आ जाते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन किसका है हमारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, तो ये इजी क्वेश्चन लग रहा है, हम कर सकते हैं बिकॉज ग्राफ के बेसिस पे सिर्फ कमेंट करना है। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, ये बताना है डिमिनिशिंग रिटर्न्स है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, फिर टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं। ये भी मतलब जिन स्टूडेंट्स को लिखने में दिक्कत आती है ना, मैं उनके लिए बता रही हूँ, ये भी हो गया क्योंकि ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो 29th पे आओ, डिस्क्राइब हाउ अ स्पेशलिस्ट बेकरी करेंटली प्रोड्यूसिंग केक्स ऑन स्मॉल स्केल कुड पोटेंशियली एक्सपीरियंस इकोनॉमीज। ये 6 मार्क्स का है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड। 6 में से अगर 3 भी आ जाते हैं तो भी क्या दिक्कत है। नेक्स्ट देखो 30th, इलास्टिसिटी निकालनी है, रेवेन्यू पे कमेंट करना है, फिर से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। 31, डिस्क्राइब हाउ अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस एंटी मलेरिया मेडिकेशन कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलो 4 में से हमने बोला 2 आ गए क्योंकि आपको रीजनिंग करनी नहीं आती। नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब मार्केट स्ट्रक्चर दैट वुड मोस्ट क्लोजली रिप्रेजेंट डेंटल प्रैक्टिस ऑपरेटिंग। ये अब यहाँ ट्रिकी है, सीधा 10 नंबर का मुश्किल क्वेश्चन उसने माइक्रो से डाल दिया। पहली बात तो अगर हमने गलत मार्केट आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद हम नॉन प्राइस कंपटीशन नहीं कमेंट कर पाएंगे। क्लियर है? तो एक तो डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिकी तो आएगा। अब अगर 51 मार्क्स की हम माइक्रो मान रहे तो उसमें आपको ये ट्राई करना है कि हाँ मुझे 40 to 45 मार्क्स तो लाने ही है, ताकि अगर मेरा मैक्रो का सेक्शन नहीं भी अच्छा जाता तो थोड़ा बहुत भी अगर मैंने मैक्रो में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो मेरा पेपर निकल जाएगा। क्लियर है? So first 10 chapters are representing 50% of your exam paper. This was last diet paper, September 2023 IFO exam. Let's move now to one more exam. अब देखो यहाँ पर अब चैप्टर 10 का क्या ही आया, अब इतने सारे हमने पेपर कर लिए, क्या आया चैप्टर 9 का, क्या आया एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला सेक्शन। हाँ, अब हर एक चैप्टर के अभी अब देखो कोई क्वेश्चन नहीं है बजट लाइन से, कोई क्वेश्चन नहीं है इंडिफरेंस कर्व से, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जल्दी से, so first question, problem of scarcity, choose the correct one. D. Okay, so in economics, the problem of scarcity exists only in economies that are full employment, can be eliminated if prices are allowed to rise or fall, means that there are shortages of goods due to demand being greater than supply, exists because there are insufficient resources to satisfy human wants. So perfect. First ka answer is D, everyone. Plus 1.5 marks. So everyone in online also says D. Next one, what is the combined effect of a fall in cost of production and fall in consumer income? दोनों पे impact check करो. Demand भी आपकी basically fall in cost of production means increase in supply. Fall in consumer income means decrease in demand. It's given, it's a normal good. दोनों को increase decrease करके impact check करो.
देखो ऐसे मल्टीपल ना ग्राफ्स बना सकते हो. मैंने पहले ग्राफ में क्या बनाया, मैंने शो करा कि चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन डिमांड. तो इस केस में क्या हो रहा है, क्यू बढ़ रहा है और प्राइस कम हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट केस हम करते हैं, सेम कर दो दोनों को. अब यहाँ देखो, when change in supply is equal to change in demand, Q में no change, price falls. Third case, change in price is more than change in demand is more than change in supply. What is same in both the cases? So answer is price falls but impact on Q is unclear. Clear hai? So you should always do like this in your exam when a question comes. You will never make mistakes. Option is कौन सा? C. Effect on quantity is indeterminate but price will fall. So everyone in online, answer is C. Economies of scale means which of the following? Yes. Economies of scale is a long term concept. So LTC basically have to fall, ATC has to fall as output is rising. Fourth one, which of the following does not necessarily apply to perfectly competitive firm that produces in both short and long run? Firm will equate its MC to its AR, this has to apply. Firm will equate its MC to MR, this is also apply. Firm will have AR that exceeds its average variable cost, this has to apply, तभी वो short run में करेगा और long run में भी definitely होना चाहिए. Firm will make only normal profits, ये नहीं होता because firm can make supernormal profits in short run. Option is D. Fifth one, prisoner's dilemma applied to situation of involving two oligopolistic firms illustrates that लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रिजनर्स डिलेमा. ईच फर्म विल नॉट टेक अकाउंट ऑफ इट्स राइवल्स एक्शंस, ये नहीं है. प्राइस सेट विल नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस सेट बाय अदर फर्म, ये भी नहीं है. बेसिकली प्रिजनर्स डिलेमा क्या कहता है कि आप लोग अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप इकट्ठे होकर प्रोड्यूस करो. So in avoiding the worst possible outcome, each of the firms will fail to reach the best possible outcome. Option C. So fifth ka is option C. Sixth, welfare consequences of third degree price discrimination are to the benefit of किसको फायदा मिलता है, प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को या दोनों को? यस, सी. Demand for good X has a price elasticity of -1. Tax on good X is 10 per unit.
if government decides to reduce the tax to 5 per unit, this would shift the supply curve for good X down by कितना? देखो अभी टैक्स चल रहा है हमारा 10 पर यूनिट, प्राइस इलास्टिसिटी -1 है, मतलब डिमांड क्या है एकदम, यस. इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिड्यूस द टैक्स टू 5 पर यूनिट, तो सप्लाई कर्व जितने से टैक्स में चेंज होगा, हमने यही पढ़ा हुआ है, जितना टैक्स से चेंज होता है उतना ही मेरे सप्लाई कर्व में चेंज आता है. जब हम कहते हैं कि टैक्स 5 से लगा है, तो आपका बेसिकली सप्लाई कर्व में क्या इम्पैक्ट आता है, सप्लाई कर्व में हम वो +5 कर देते हैं. तो इसका मतलब सी या डी में से ऑप्शन है, क्योंकि सप्लाई को तो पूरा 5 से चेंज होना है, लेकिन प्राइस आपके हिसाब से डिक्रीज कितना करेगा, पूरे एग्जैक्टली 5 से या लेस देन 5 से. कुछ बर्डन यहाँ पर क्या है, क्योंकि टैक्स कम हो रहा है तो कुछ बेनिफिट कंज्यूमर भी फेस करेगा. तो प्राइस कितने से चेंज होगा, पूरे 5 से या लेस देन 5 से? यस, बिकॉज बेनिफिट सारा का सारा सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर नहीं जाएगा, प्रोड्यूसर भी तो कुछ बेनिफिट शेयर करेगा. अगर प्रोड्यूसर शेयर करेगा तो प्रोड्यूसर तो ये नहीं चाहेगा कि प्राइस पूरा 5 हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्राइस पूरा 5 से गिर जाएगा तो प्रोड्यूसर को जो प्राइस मिलेगा वो पूरा 5 से कम हो जाएगा. तो जब भी बर्डन शेयर होता है तो ये ध्यान रखना, जब भी हम लोग कहते हैं तो आपका प्राइस 3 चीजें बनती हैं. अगर एक टैक्स का डायग्राम आपको याद हो तो ये रहा आपका डिमांड कर्व, ये रहा सप्लाई कर्व. हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ही टैक्स लगता है, ठीक है, ऐसे करते हैं इसको हम, ये पूरा आपका कितना होता है, पूरा चेंज एग्जैक्टली ये हम कह देते हैं मे बी द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर. This was my equilibrium price. This is the price received by, this is the price paid by consumer, price received by producer. So Kanishka says 5 exactly, decrease the price by less than 5. Yes. So jaldi se quickly question 8. Economy moves from 15 of X and 6 of Y to producing 16 of X and 3 of Y. How many units of Y is opportunity cost of 16th unit of X? थ्री. कैसे निकाला है 3? यस, पहले था 15 और 6, एक बढ़ाने की वजह से सीधा 3 पे आ गया, तो 3 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एनुअल डिमांड कर्व? डिमांड कर्व हमने क्या बोला है कि it shows the different quantities that consumer is willing to buy at different prices. So our answer is C. Last one, if a maximum price for good X is fixed above the market equilibrium price, there will be, इतना तुम्हें सोचना पड़ रहा है, no tendency for price to change. आपका मैक्सिमम प्राइस आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है, मतलब मेरे इक्विलिब्रियम सीलिंग को नहीं छोड़ रहा, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा. क्लियर है विद इट? अब लग रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है. ओके, सो विद दिस वी रैप अप टुडेज सेशन. वी विल कंटिन्यू विद मोर एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर आवर नेक्स्ट क्लास टुमारो. In case you guys have time and you want to move to next set of chapters, please start moving with chapter 11 to 13. So online students, make sure that you are completing everything on time. So that's it for the day from my side. Thank you.